Hello everyone. Hi, this is Sonali, and here in this session we will be dealing what is breathing and how the breathing is being taking place in a human being, right? Along with that, we will be dealing about the respiratory system in humans. So first of all, we have already seen कि respiration क्या होता है, respiration का क्या basic need है human being में, and then we have already seen कि ठीक है respiration is another thing and breathing in it another. Both the process are different, right? But still they are interconnected. But how, right? So we will be seeing this, right? So सबसे पहले हम देखेंगे कि what is breathing. So breathing, right, मतलब process, and breathing का process मतलब taking in of air, right? So we will be dealing कि breathing is a process, right, by which the oxygen rich air, the air which is having a more oxygen content, is taken in, right, from where, from the atmosphere, and this process is called as inhalation. While the another process where the carbon dioxide, right, carbon dioxide rich air, from where, from the body, right, क्योंकि हमने oxygen लिया and our tissues, our cells has performed some functions जिसकी वजह से carbon dioxide is being removed as a waste, right? But this whole carbon dioxide is being removed out of your body, right, and this process is called as exhalation. So we have seen that breathing is just the inhalation plus the exhalation, right? So breathing is a combination of one inhalation and one exhalation. So हमने ये देख लिया ठीक है कि breathing क्या है, but क्या ये एकदम ऐसे ही होता है? No, breathing is just the part of respiration, right? क्योंकि ये दोनों process they are interconnected, right? हम तुम एक साथ है, right? एक चीज़ तरीके से समझ सकते हो आप कि दोनों चीज़ें एक साथ साथ ही हो सकती है, and we cannot just basically differentiate in between the two. So सबसे पहले देखेंगे कि okay, mechanism of breathing क्या कहता है. So when we talk कि what is mechanism of breathing, so we will be dealing कि how this breathing process is taking place inside the human being, right? So first of all, breathing requires, right, क्योंकि यहाँ breathing हम बोल रहे हैं, that means you will be having, since you're taking in the air, so ये तो एक बहुत जनरल वे है that you know that there are lungs in your chest, or we can say they are responsible for taking in air and removing out, right? आप सांस तो इसी वजह से ले पाते हो. So what is this lungs? Because here this is, there is a complete cavity, this is called as thoracic cavity, where your lungs along with your vital organ, that is heart, is situated, right? And this heart and lungs is basically covered all together by a rib cage, and rib cage actually performs a function for protection over these organs, right? Another organ which is very much important, that is your diaphragm. So diaphragm is a muscular dome shaped organ, right, which is present in the anterior posterior region of your body, and basically it demarcates, or we can say it basically separates the thoracic cavity along to the abdominal cavity. Abdominal cavity is a cavity where your digestive system is placed, right? Now हमने देखा ये सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट किस किस ऑर्गन के हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर मोस्ट process of breathing is the inhalation, right? So we will be dealing कि inhalation क्या है. So two major things, or we can say two major steps are taking place during inhalation. That is, first is your upward and outward movement of thoracic cavity. What is actually this is representing? अब बिल्कुल आप ये चीज़ एकदम एक्सप्लेन एक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एज यू ब्रीथ इन, राइट, सांस अगर आप अंदर लो, यू विल फील दैट योर चेस्ट कैविटी और थोरासिक कैविटी इज रेजिंग अप, राइट, बाहर की तरफ आता है. एंड ये जो थोरासिक कैविटी बाहर की तरफ आ रहा है, राइट, ये बेसिकली कुछ चीज़ों की वजह से होता है. और दैट चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, दे आर स्पेसिफाइड मसल्स, और वी कैन से स्पेसिफाइड ऑर्गन्स विच आर देयर विच इज़ डूइंग दिस प्रोसेस. तो मैंने कहा कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, राइट, ये जो बाहर की तरफ का मूवमेंट है आपकी थोरासिक कैविटी का, एंड बेसिकली वी कॉल्ड इट एज रिब केज, राइट. सो रिब केज के बाहर की तरफ मूवमेंट, सिंस रिब्स आर वेरी टाइट ऑर्गन्स, वी कैन से वेरी टफ ऑर्गन्स, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है कि रिब के चारों तरफ, राइट, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से देर आर सम स्पेशलाइज्ड मसल्स जो रिब्स को जोड़ती हैं एक दूसरे से. दैट स्पेशलाइज्ड मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड दैट these muscles basically control the contraction and relaxation of the ribs over the
एरिया, राइट. सो हम कहते हैं कि ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी, देन आपके रिब्स भी कंट्रैक्ट करेंगे. अगर इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगी तो आपके रिब्स भी रिलैक्स करेंगे. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज व्हाट? सेकेंड इज कंट्रैक्शन, राइट. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट, और वी कैन सी इन द फिगर दैट हियर इज द इनहेलेशन प्रोसेस. क्या कह रहे हैं हम? वेन एवर द एयर इज टेकन इन, राइट. तो होता क्या है कि योर रिब्स, राइट, देर आर सम स्पेशलाइज्ड मसल्स इन बिटवीन योर रिब्स. सो दीज मसल्स बेसिकली वी आर कॉल्ड इट एज intercostal muscles. And these intercostal muscles doing what? These are being contracted so that the basically your thoracic cavity, or we can say the ribs, are moving outward, बाहर की तरफ आने लगते हैं, राइट. एंड दिस इंक्रीजेज योर इंटरनल वॉल्यूम, बिकॉज सिंस एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जगह बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एयर वी कैन टेक इन. तो हम यही कहेंगे कि हाँ पे देर इज़ कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इज ऑलवेज डूइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो अगर ये डाउनवर्ड होगा तो अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग द इंटरनल वॉल्यूम. इंटरनल वॉल्यूम दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट interpulmonary volume, right, the volume within the lungs. And तो हमने कहा कि दो बातें हो गई, upward and outward movement of thoracic cavity, which is due to the contraction of intercostal muscles, and second is the contraction of diaphragm, which results in the downward movement, which is causing the increase in the thoracic cavity so as to increase or enhance the gases exchange, right. Second process अब हमने देख लिया inhalation कैसे होता है. Now exhalation is what? अगैन वी विल बी डीलिंग कि ठीक है, एक्सहेलेशन क्या है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ से वी आर एक्सपेलिंग आउट द एयर, राइट. इनहेल नहीं कर रहे, एक्सहेल कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने वाला है कि यहाँ पे देयर इज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ थोरासिक कैविटी, यानी कि आपका जो थोरासिक कैविटी है, द रिब केज, राइट, ये अब अंदर की तरफ मूव करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले जो एरिया, पहले जो स्पेस बढ़ी थी, अब उसे हम रिड्यूस करेंगे सो दैट द इंटरनल एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट मोर ऑफ ओवर एयर जो है आपकी बॉडी की वो बाहर निकल जाए, राइट. सो ये कैसे होता है? ये होता है पहली चीज़ तो ये कि डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स. अगेन इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से मसल्स है? दोज मसल्स विच आर देयर इन बिटवीन योर रिब्स. एंड ये मसल्स बेसिकली आपके रिब के कंट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, राइट. सो इन मसल्स के कंट्रैक्शन से, इन मसल्स के रिलैक्सेशन से यू कैन सी, राइट. सो हुआ क्या कि सिंस देर इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, देर इज अ डिक्रीज इन द ओवरऑल वॉल्यूम इन द thoracic cavity, right. So वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर बेसिकली दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एज यू इंक्रीज योर वॉल्यूम, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड. एज यू डिक्रीज योर वॉल्यूम, प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट. सो ये जो इंटरकनेक्शन है इनके बीच में, ये हेल्प करेगा टू लर्न और टू गैदर दिस इन अ मोर प्रोमिनेंट वे, राइट. सो सेकेंड थिंग इज कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम के रिलैक्सेशन, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कहा रिलैक्सेशन, दैट मीन्स डायफ्राम, योर डोम शेप डायफ्राम विल मूव अपवर्ड, राइट. इससे क्या हुआ? द ओवरऑल वॉल्यूम विद इन योर लंग्स इज बीइंग डिक्रीज टू अ वेरी गोस्ट एक्सटेंट, राइट. दैट मीन्स आपके अंदर का जो पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि सिंस रिब केज भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो इट विल मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा. एंड सिंस डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सो अगैन ये आपका जो मूवमेंट है दैट विल बी इन अ अपर वे, राइट. तो दोनों ही तरीके से आपका जो थोरासिक कैविटी है उसके अंदर की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस कॉजेज एन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स. सिंस प्रेशर बढ़ गया तो हम क्या कहते हैं कि हमेशा प्रेशर हाई टू लो मूव करता है, या कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करती है, राइट, टूवर्ड्स ग्रेविटी और टूवर्ड्स एवरीथिंग, राइट. तो यहाँ पे भी वही होगा कि सिंस यहाँ पे हाई प्रेशर एयर है विद इन द लंग्स, राइट, एंड बाहर का यानी जो बेसिकली एटमॉस्फेयर का है, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है यहाँ पर दैट इज़ कम, मतलब लेस है, राइट. तो होगा क्या कि यहाँ से एयर बेसिकली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी फ्रॉम योर नोज, नॉस्ट्रल और माउथ, राइट. सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि ब्रीदिंग में क्या दो चीज़ें हो रही हैं और ये कैसे हो रही हैं, ठीक है. सो दो पॉइंट्स में हमने देख लिया कि अगर इनहेलेशन होगा तो यहाँ पे इनहेलेशन विल बी डन बाय कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम.
वाइल अगर हम एक्सलेशन बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट होता है इंटरकॉस्टल मसल्स का, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स का एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम. सो वी हैव सीन दैट इनहेलेशन इज व्हाट, एक्सलेशन इज व्हाट, बट यहाँ पे यू कैन क्लियरली विजिबल और यू कैन क्लियरली इमेजिन दैट यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बीइंग टेकन प्लेस इन बिटवीन द लंग्स एंड एयर. बट देर इज़ सम ट्विस्ट, यहाँ पे कुछ कुछ तो बदलेगा, राइट. दैट बदलाव जो होने वाला है ना, ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार होता क्या है, क्यों हमेशा लंग्स से ही ये एक्सपेल आउट हो पाता है या कोई और ऑर्गन ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता. सो देर आर सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो आपकी लंग्स में होते हैं जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सकते हैं. तो ये क्या है, क्या प्रोसेस है, ये अब हम देखेंगे. सो वी विल बी डीलिंग इन द मोर प्रोमिनेंट वे, दैट इज़ योर रेस्पिरेशन इन, और वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मेनी टाइम्स यू आर बीन आस्क्ड टू फाइंड कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लेन द पाथवे, राइट. सो हम इसको बहुत अच्छे से देखें. So first of all, what is the respiratory system in humans? Everywhere respiration means wherever you have there is a release of energy from the food by utilizing the oxygen which is taken inside your body, right. तो वहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है respiration, और we can say respiratory pathway, right. So अब हम देखते हैं कि humans में respiratory pathway किस किस चीज़ों का या किन किन organ से बना होता है, right. So human respiratory system, right. Human respiratory system is consisting of nose, nasal passage, trachea, bronchi, lungs and diaphragm. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट पोर्शन इज योर नोज, नेसल कैविटी, राइट. वो कहाँ से है, ये आपके एक्सटर्नल ओपनिंग्स है दो, राइट. उसके पीछे देर इज़ अ वेरी ब्रॉड पैसेज जिसको हम नेसल पैसेज कह रहे हैं, एंड देर इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर नेसल पैसेज. तो वो जो लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड हो रही है दैट इज़ योर ट्रैकिया एंड विच इज़ गार्डेड बाय सम कार्टिलेज. यू कैन सी इन द फिगर, राइट. हियर दिख रहे हैं आपको ये सर्कुलर से कार्टिलेज. दीज कार्टिलेज आर देयर इन द ट्रैकिया. ये ट्यूब है. देन दिस ट्यूब इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इन द मिड थोरासिक, बीच में आके वो बढ़ जाती है इंटू टू ट्यूब्स, और ये दो जो ट्यूब्स है दीज आर द ब्रोंकाइस, राइट. एंड then these tube basically enters into the two muscular organ which is called as lungs. You have two lungs, right. तो दोनों lungs में एक एक bronchiole enter करता है, right. Then ये bronchioles basically further divide होते जाते हैं. You can see here कि यहाँ पे देखो bronchioles के further division कितने सारे हो रखे हैं, right. They are divided into network like structure or we can say tree like structure. So ये जो tree like structures है या further divisions है ये primary, secondary and tertiary bronchioles है. We will be dealing with that, but अभी हम देखते हैं कि क्या एक general view है. So सबसे पहले हमने देखा पहला नोज, दैट इज योर नॉस्ट्रल जहाँ से एंटर कर रहे हैं एयर. सेकेंड थिंग इज योर नेसल पैसेज. नेसल पैसेज इज द एरिया जहाँ पे एयर एंटर कर रहा है या स्टोर हो रहा है, एक चैम्बर है, राइट. देन दैट area will continue into pharynx or then to trachea, right. Trachea is what? Trachea is your larynx, or we can say where the voice box is also situated. You can see here Adam's apple, your sound box, right. And it is continuing in a long tube that is trachea. Then this trachea basically divides into two, that will be bronchi, and these bronchi will divide into further tree like branching or network like branching, that will be your bronchioles, right. And they are branching in a specialized organ that is called as lungs, and there is a dome shaped or we can say completely muscular organ which is diaphragm. So diaphragm basically helps in the proper basically respiration and proper breathing, right. So without diaphragm we can't even think over breathing क्योंकि diaphragm is very important, right. Then सेकेंड थिंग कि हमेशा जो एयर है द एक्सटर्नल एयर, ये आपकी रेस्पिरेटरी पाथवे में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल या नोज के थ्रू ही एंटर करता है एंड मेनी अ टाइम्स योर माउथ ऑल्सो, राइट. बट मोस्टली व्हेन यू रेस्पायर इज रेस्पिरेशन इज थ्रू नॉस्ट्रल, हम मान के चलते हैं. Second thing is the nasal cavity. Nasal cavity is what? Is the space which is behind your nostril, behind your external opening. जो भी chamber है, जो cavity है behind your nostril is your nasal cavity. Third form is there is basically a hard bony palate. Palate क्यों कह रहे हैं? There is just a plate like or we can say bone hard structure जो कि separate करता है nasal cavity को from your oral chamber.
ये ज़रूरी क्यों है कि आपका नेसल चैम्बर एंड ओरल चैम्बर अलग अलग हो? दिस इज़ बिकॉज वेर एवर देर इज़ मिक्सिंग, वहाँ पे चोकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और दैट मे लीड टू डेथ ऑफ एन पर्सन, राइट? तो हम ये कहते हैं कि दीज टू आर मस्ट बी वेरी क्लियरली डिमार्केटेड, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होना चाहिए, या दोनों की कैविटीज़ अलग अलग होनी चाहिए, राइट? देन the nasal chamber, your nasal chamber basically continues into since you know कि you have hairs, you have mucus in your nose, right? ये जो mucus है, ये जो slimy substance की मैं बात कर रही हूँ, ये fine hairs की जो मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा important है to to basically clean the air which you are breathing. मतलब आप सांस लेते हो, उसमें देर आर सम डस्ट पार्टिकल, देर आर सम डिफरेंट और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल स्पोर्स, तो ये सब आपकी बॉडी में एंटर करता है. सो टू retain them outside our body, or we can say to prevent your body from these external germs, हमारी बॉडी में there are some external प्रिवेंटर्स, जो हम कह सकते हैं कि ये बचाते हैं हमारी बॉडी को. तो ये कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट इज़ योर फाइन हेयर्स. तो ये जो हेयर्स है बेसिकली डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर बॉडी. एंड म्यूकस, म्यूकस इज़ अ थिक लेयर, और वी कैन से थिक और द स्लाइमी लेयर विच बेसिकली कंट्रोल्स विच ट्रैप्स द जर्म्स, राइट, इनटू देम. तो म्यूकस हर जगह आप देखोगे जहाँ पे भी म्यूकस है, म्यूकस एक तरीके का प्रोटेक्शन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. देन तो हमने देखा, अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या है, कि दे हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर बाय ट्रैपिंग द डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ विच मे एंटर इनटू योर बॉडी अलॉन्ग विद द एयर. मतलब एयर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, दे आर बीइंग रिमूव्ड बाय द म्यूकस, राइट? देन द क्लीन एयर मीन्स which is basically free of any germs, free of any impurity, right? That air, that clean air enters into the windpipe, and that windpipe is commonly called as trachea. So trachea is a long tube which is extending to the nasal cavity. तो यहाँ nasal cavity and ट्रैकिया के बीच में there is a portion which is called as pharynx. तो pharynx वो एक common origin है जहाँ पे फूड पाइप एंड ट्रैकिया दोनों का एक चेम्बर मतलब है, दोनों के बीच में एक डिमार्केशन है, राइट? अब हम देख लेते हैं कि ट्रैकिया क्या है, ये ट्रैकिया की क्या यूटिलिटी है, या क्यों हम ट्रैकिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं. बिकॉज ये देर इज़ अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी कि पूछा जाता है जो आपसे, ठीक है? तो पहली चीज़ कि trachea is basically a long tube which is extending from a windpipe, right? Which is commonly termed as windpipe and which is extending from the nasal chamber. So the air which is entering into the trachea through the nasal chamber, it's have an initial portion. उसकी initial portion को, trachea की initial portion को we commonly called as larynx or voice box, right? Then to prevent the collapsing, now I was discussing कि एक question बहुत मैं important बताने वाली हूँ, because that question will be asked in your exam कि why the trachea is being supported by these rings. You can see in the diagram here, you can see there are some specialized ring. ये ring क्यों है, ठीक है? तो ये rings की क्या ज़रूरत है, क्यों ये cartilage की ring around the trachea supported होती है? So the basic or the most important reason of being there is to prevent the collapsing of trachea. मतलब in case you are not breathing, मान लीजिए कि आप अपना सांस तो थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, कोलैप्स कर जाती है. ऐसा तो नहीं होता कि यू जस्ट सडनली गॉट टिल डेथ, राइट? तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके दो रीज़न है. पहली चीज़ तो ये कि देर इज़ सम अमाउंट ऑफ एयर विच रिटेन इन योर बॉडी. ऐसा नहीं कि जो आपने इनहेल किया वो सारा का सारा एक्सहेल कर देते हो आप, नो, ऐसा नहीं होता. देर इज़ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ रिमेन्ड इन योर लंग्स. क्यों ज़रूरी है वो एयर? वो एयर इसलिए ज़रूरी है सो दैट योर लंग्स डू नॉट कोलैप्स. एंड सेकेंड थिंग, द ट्रैकिया विच इज़ विंड पाइप वो कोलैप्स ना करे, क्योंकि जो भी मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं दे मे कोलैप्स्ड in the absence of air, right? So to prevent the collapsing of trachea, there is no air. When there is no air, अगर कोई भी एयर नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा कि कोलैप्स कर जाए ट्रैकिया, राइट? तो इस टाइम पे आपकी जो ट्रैकिया है, these are being supported by cartilage rings, right? And these rings help the trachea to be straight or to be supported, right? तो हम कहते हैं कि ये जो rings हैं they provide support
and these soft bones are commonly called as cartilage. So soft bone क्यों बोल रहे हैं? Because they are extensible, या we can say they provide a movement, right? तो हार्ड नहीं है वो. सेकेंड थिंग कि हमने ये देख लिया, तो हम ये जान चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है ये कार्टिलेज की रिंग्स अराउंड द ट्रैकिया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्यों ज़रूरी है ट्रैकिया के चारों तरफ ये रिंग्स. सेकेंड थिंग कि हमने देखा कि ठीक है, ट्रैकियाज आर देयर, ट्रैकिया इज़ देयर एंड इट जस्ट मूव डाउन ओवर योर नेक, राइट. तो होता क्या है, इन द मिड थोरासिक कैविटी में इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट. मैंने अभी आपको बताया था कि यू कैन सी कि फिगर में there is two extension, or we can say there is two division of your trachea. तो ये जो दो division है, these divisions are called as bronchi, and these bronchi are responsible for transferring, or we can say extending over the lungs. तो ये जो bronchi है, ये bronchi दो tube है which is divided from the trachea, and ये जो bronchi है ये connected होते हैं to the lungs at their टर्मिनल और द लोअर एंड. ठीक है, तो जो ब्रोंकाई की लोअर एंड है वो अटैच होता है लंग्स से, राइट. देन व्हाट इज डायफ्राम? सो डायफ्राम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज़ अ डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, राइट. इट इज़ अ डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच सेपरेट्स द थोरासिक कैविटी. कौन सी कैविटी? थोरासिक. दैट मीन्स विच कंटेन्स द लंग्स एंड हार्ट. एंड बिलो, मतलब बिलो डायफ्राम जो है दैट इज़ योर abdominal cavity. Abdominal cavity is the cavity where your digestive system is there, right. So यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने का काम डायफ्राम का होता है, एंड इट हेल्प्स इन द ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ओके, आई कैन जस्ट टेक यू टू अ वेरी क्लोज एक्सटेंट कि डायफ्राम बेसिकली एक तरीके से एक काम और करता है. वो ये करता है कि थोरासिक कैविटी में जो एयर प्रेशर है वो, एंड द एब्डोमिनल कैविटी में जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन करके रखता है. ये नहीं होगा कि अगर मतलब ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, नीचे भी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर जहाँ पे भी लगेगा देयर विल बी वी कैन से देयर इज़ सम डैमेज, मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डायफ्राम ऑल्सो बेसिकली इट मेंटेन्स और इट बैलेंसेस द प्रेशर ओवर योर थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी. सो राइट, दिस इज़ अ थिंग कि हम एक जनरल व्यू बताते हैं कि डायफ्राम और क्या काम कर सकता है, राइट. सो हमने देख लिया, ठीक है, डायफ्राम का फंक्शनिंग देखा. देन लंग्स का क्या रोल है? लंग्स बेसिकली बहुत स्पेशलाइज्ड मस्कुलर ऑर्गन है विच हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिकॉज लंग्स की चारों तरफ देयर इज़ अ मेम्ब्रेन. You can see in the downward figure that there is basically a two layer structure. यहाँ देख सकते हैं आप, ये दो layers दिख रहे हैं. These two layers or double membrane structure is known as pleura or pleural membrane. So these pleural membrane are responsible, right, for what? These are responsible for absorbing the shock. क्योंकि आपको पता है there is ribs around these lungs, इनके चारों तरफ ribs हैं. तो इन ribs के बीच में और lungs के बीच में during breathing in और breathing out देर इज़ मूवमेंट, और मूवमेंट जहाँ है तो वहाँ फ्रिक्शन भी तो होगा. सो फ्रिक्शन जहाँ पे आएगा तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए वी कैन से कि यहाँ पर देर मस्ट बी सम थिंग, और वी कैन से सम मेम्ब्रेन विच बेसिकली प्रिवेंट्स द हार्ट, प्रिवेंट्स द लंग्स. तो ये जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, दिस इज योर प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल कैविटी. ठीक है, सो ये जो कैविटी है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये लंग्स को ओवरली कवर करता है और इट प्रिवेंट्स, or we can say it absorbs the shock as well as it protects the lung from friction, or we can say frictional pressures or forces, right. तो ये जो लग रहा है फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, राइट. तो ये सब चीज़ें काम जो प्लूरल मेम्ब्रेन करती है. अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लूइड होता है, बिकॉज सिंस फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, तो वो क्या करता है कि फ्लूइड पूरी तरीके से इसको फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, सो ये जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड विच इज़ देयर इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, राइट. सो हमने देखा कि क्या होता है. देन यू कैन सी हियर देयर इज द लॉन्ग ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ये तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज हैविंग अ वेरी वाइड व्यू. यहाँ पे ये जो बबल लाइक और वी कैन से बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स और स्पेशलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई. ये एल्वेलाई
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इससे पूछा जाता है कि एल्वेलाई का मेजर रोल बताइए, राइट। सो ये जो मेजर रोल पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे कि हर जो ब्रोंकस है, मतलब ब्रोंकस मीन्स ब्रोंकाई या इन द लंग्स, ये फर्दर ट्री लाइक ब्रांचिंग में या ट्री लाइक नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ऐसे डिवाइडिंग 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 डिवाइडिंग, एंड दीज डिवाइडिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दीज टर्मिनेट ओवर अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड पे बनता है, एंड दैट बॉल और वी कैन से दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर is your alveoli. So alveoli is what? Alveoli is the bag-like structure, sac-like structure, which is at the end or we can say terminal of bronchioles. So ये bronchioles के terminal पे present होते हैं और ये help करते हैं for the exchange of gases. तो क्या क्या चीज़ें होती है alveoli में? पहला चीज़ तो ये they help in the exchange of gases. कौन से गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड थिंग कि जो alveoli की वॉल है, this is completely lined by a network of blood vessels. Blood vessels means we are having artery, veins, capillaries, everything is there. तो इससे contact में रहती हैं ये जो आपके alveolus है, right? तो इनके चारों तरफ बहुत सारी network of capillaries, blood vessels होती हैं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि alveoli की membrane, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सी, एक alveolar membrane है, एंड होता क्या है, इसे इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वी आर हैविंग दिस, ये ब्लड वेसल्स है। सो होता क्या है कि एल्वेलर की जो मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू वी हैव एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम एंड फ्रॉम टू द ब्लड। तो जो ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन इनटेक कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वेलाई रिलीज आउट कर देता है। तो यहाँ इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल्स, राइट। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्रेटर सर्फेस एरिया। सिंस अगर मैं इट्स योर NCERT फॉर्म, मतलब एक आपकी NCERT में एक बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ है, दैट इज सेइंग कि एक लंग के अगर सारी एल्वेलर सैक्स को यानी एल्वेलाई को ओपन अप कर दिया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर होता है, दैट इज़ 80 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज, यू कैन जस्ट थिंक ओवर इट कि आपकी लंग में कितना स्पेस प्रोवाइड कर रही है वो, राइट। सो हम ये यहाँ पे इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अ ग्रेटर सर्फेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सेकेंड थिंग इज कि दे ऑल्सो देर आर अराउंड मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इन योर ईच लंग और इन योर वन लंग, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर है आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, कैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका फॉलो अप करता है रेस्पिरेशन, ये हम अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कैसे हो रहा है ये। अब एक लास्ट है, दैट इज़ योर रिव्यू कि यहाँ पे रेस्पिरेशन मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, राइट। सो सिंस अगर मैं अभी यहाँ पे मैंने आपको एक बताया कि वी हैव दैट एक तरीके से नोट इन योर NCERT, तो वो नोट क्या कहता है, वो ये कहता है, ये फैक्ट है एक्चुअली, तो वो ये कहता है कि अगर आपकी एक लंग्स एंड देन दोनों लंग्स का कंप्लीट एल्वेलाई ओपन कर दिया जाए, सो वो ओवरऑल बेसिकली 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा, और वी कैन से कि इट इज़ अबाउट 28 और area of tennis court, size of tennis court, right? Then what is a review of respiration mechanism? Why we say कि respiration mechanism is different from breathing, right? तो यहाँ पे होता क्या है ये हम देखेंगे। So review of respiration mechanism, we breathe air, जब भी हम breathe in करते हैं, there is a contraction of diaphragm and intercostal muscles, इस process को कहते हैं inhalation, while as which results in the increase in the volume of chest cavity। ये मैंने आपको बताया कि since volume increase हो जाता है because space area increase हो रहा है, so this causes the expansion or we can say expulsion, right? So expansion होता है and this decreases the inter pulmonary pressure। क्यों बोल रही हूँ मैं, because it is the pressure of air within your lungs। so जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर कम है आपकी बॉडी में एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर, तो तुरंत एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर विल मूव इनसाइड योर बॉडी, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर इज डिक्रीज इन प्रेशर विद इन योर लंग्स, एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज प्रेशर द हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर, राइट, दैट रशेज इनसाइड योर लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल, trachea and bronchi, right? And then when your
लंग्स इज़ फुल ऑफ एयर, ठीक है, जब आपके लंग्स में पूरी एयर भरी है, तो मुझे बताइए अगर मुझे इसको बाहर एक्सपेल आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, तुरंत लंग की वॉल्यूम को कम करूँगी ताकि उसका प्रेशर बढ़े, और अंदर जो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और वी कैन से देयर इज विल बी एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो हम क्या कह रहे हैं कि देन दिस एयर विच फिल्स द एल्वेलाई एंड द लंग्स, राइट. अब इसमें जो एल्वेलाई में पहुंच रही है ये जो एयर, तो उसमें तो ऑक्सीजन होगा, तो वो ऑक्सीजन इज बीइंग डिफ्यूज्ड इनटू योर एल्वेलर मेम्ब्रेन, और वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इनटू द ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज, राइट. एंड ये जो ब्लड गया उसमें, दिस ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल योर बॉडी, राइट, जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है. सो दिस ऑक्सीजन इज बीइंग कैरिड आउट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ये किसके थ्रू होता है, दिस इज डन बाय अ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन. हम इसके बारे में जानेंगे कि हीम एंड ग्लोबिन क्या है. सो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड में होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग द ऑक्सीजन ऑल टुगेदर टू योर बॉडी, राइट. सो ये बेसिकली हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है विच इज़ फाउंड इन योर ब्लड. तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, राइट. जो कि आपका जो नेक्स्ट सेशन इन furthermore session we can say, because transportation in plant is there in your next session. Then as the blood passes through the tissue, मतलब जैसे जैसे ये ब्लड जाएगा, अब ब्लड में क्या है, ब्लड में है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगा, एंड ये ऑक्सीजन इज़ बीइंग यूटिलाइज बाय द टिश्यू, ठीक है. अब टिश्यू ने यूटिलाइज किया, ठीक है, बट वहाँ पर मान लेते हैं टिश्यू है, दैट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल और द टिश्यू, राइट. इन एंड दिस रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली डिफ्यूज्ड आउट इनटू योर लंग्स तक. कैसे, क्योंकि एल्वेलाई में जिस ब्लड ने क्या किया, देर इज़ डिफ्यूजन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, ठीक है, ब्लड कैपिलरी. अगर मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है इनटू द ब्लड, तो ब्लड से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वापस लंग्स में, और वी कैन से एल्वेलाई में, तो वहाँ पे देयर इज एक्सचेंज, ठीक है. दैट एक्सचेंज लीड टू द एक्सपेल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड योर बॉडी, राइट. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये दीज टिश्यूज वेयर द सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट एज अ waste product, and this blood transports the carbon dioxide back to the lungs where it diffuses into the alveoli, and this alveoli then expels this out of the body. कैसे, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे देखा हमने इनहेलेशन के टाइम पे there was contraction of intercostal muscles and diaphragm. so यहाँ पे अब होगा relaxation of intercostal muscle and diaphragm, which causes what, which causes the decrease in the thoracic volume, and this decrease in the thoracic volume which suddenly increase the pressure within your lungs. तो pressure within your lungs अगर increase हो गया air का, तो तुरंत ये जो high pressure air है वो out of the body expel out हो जाएगी, right. तो ये process expulsion है या आप कह सकते हो exhalation है. So this increased pressure within your lungs is due to the relaxation of intercostal muscles, and this expels the high pressure air into your environment. So we have done each and every portion of your respiratory tract, how is being taking place, and in the furthermore session we will be dealing कि how this complete transportation, क्योंकि आपने देख लिया एनर्जी यूटिलाइज हो गई, ऑक्सीजन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, लेकिन ये ऑक्सीजन ऑल टुगेदर आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमने क्या कहा, transport. That means we will be dealing with transportation in the further session. Stay tuned with our channel.